اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے اندر دوستوں جس وقت تباہی مچا ہوا ہے حماس میں اور غزہ میں جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا، ان کا حدیث میں کیا مقام ہے؟ تو آئیے ہم اس ویڈیو میں آج اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے تفصیل کے ساتھ میں کہ حدیث میں غزہ اور حماس کے بارے میں کیا ہے۔ تو آئیے حدیث کی روشنی میں ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے، اور غزہ کی جانب سے اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے اس بارے میں بھی پوری دنیا کو پتہ ہے۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے بعد اسرائیل بوکھلا کر پورے غزہ کو تباہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ لیکن دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس جنگ میں یہودیوں کی دھمکی سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا چلا آیا ہے، اور اب آنے والے وقت میں یہودیوں کا کیا انجام ہوگا، ان سب ٹاپک پر بھی آپ کو حدیث کے مطابق کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں گی جسے سن کر آپ بھی حیران رہے۔ پیارے دوستوں، حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے بڑے بڑے عالموں کا کہنا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ساری مسلم دنیا میں آگ لگا دیں گے، اور مسلم حکومتیں ٹینکوں کی طرح بہتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک کر کے سبھی اسلامی حکومت ان یہودیوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور پھر کچھ دنوں کے لیے ساری دنیا پر یہودیوں کا بول بالا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے مسیحا دجال کے ساتھ مل کر اس دنیا پر راج کریں گے، اور جو بھی ان کے خلاف بولے گا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ آج پوری امت کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہے، جبکہ یہ اسرائیلی یہودی آنے والے حالات کی مکمل تیاری میں لگے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی شیطانی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ دجال آ کر یہودیوں کو پوری دنیا میں ایک خاص عزت دلائے گا، اور دنیا کے ہر انسان پر یہودی کی عزت کرنا لازم ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے یہودی دجال کو اپنا اصلی مسیحا مانتے ہیں اور اس کے آنے کے انتظار میں لگے ہیں، بلکہ یہودی تو اپنے دجال مسیحا کے استقبال کی تیاری 2000 سال پہلے سے کر رہے ہیں، اور اب وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ اب ہمارا مسیحا دجال بس کچھ ہی سالوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے جان بوجھ کر یہ جنگ بھڑکائی گئی اور حماس کے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کر اسرائیل پر حملہ کریں، تاکہ اسرائیل کو دکھانے کے لیے ایک بہانہ مل جائے، اور پھر وہ معصوم فلسطینیوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر اپنا ہیکل سلیمانی بنوا سکیں اور اس میں عبادت کر سکیں۔ اس لیے آپ نے کل کی خبروں میں ضرور سنا ہوگا کہ اسرائیل نے اپنے 5000 فوجی غزہ میں داخل کر دیے ہیں، اور کل پوری رات غزہ کے اندر بندوقوں کی فائرنگ ہوتی رہی، مطلب ہزاروں فلسطینیوں کو بندوقوں کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دنیا کے سارے مسلم دیش صرف بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ کل دوپہر میں ایک فلسطینی عورت نے ترکی کے صدر طیب اردوغان سے یہ بات کہتے ہوئے دم توڑ دیا کہ اب ہم فلسطینیوں کو تم مسلمانوں سے کوئی امید نہیں ہے، بلکہ اب تم ہمارے لیے دعا بھی مت کرو، ہم تو شہید ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن تم سب دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسلمان کے سب سے مقدس دیش سعودی عرب کا بھی بادشاہ خاموش ہے، اور تو اور اس نے خود امریکہ سے بات کر کے اپنے ملک میں یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی عالم ممبر سے فلسطینیوں کے حق میں بیان نہیں کر سکتا، جو بھی ایسا کرتا پکڑا جائے گا اس کے ساتھ سخت سزا دی جائے گی۔ تو دوستوں، آپ خود ہی ان اسلامی دیشوں کی گھٹیا حرکتیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ خود خاموش ہیں اور دوسری طرف اپنی قوم کے لوگوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی معصوم فلسطینیوں کے حق میں بات نہیں کر سکتا۔ آخر یہ کیسے مسلم دیش ہیں؟
कल क़यामत के दिन ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे। क़यामत के करीब की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का निकलना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल से बढ़कर नहीं होगा। इसीलिए हर एक नबी अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के जरूर डराया है, क्योंकि दोस्तों दज्जाल के बहकाने में बड़े बड़े ईमान वाले भी आ जाएंगे तो आम लोगों का क्या पूछना। यहाँ तक कि दज्जाल एक आदमी को मारेगा और फिर उसे जिंदा कर देगा। बंजर जमीन को हुक्म देगा तो उस पर खेती लहराने लगेगी। पेड़ को हुक्म देगा तो बेमौसम फल निकलने लगेगा। आसमान को हुक्म देगा तो बारिश नाजिल होना शुरू हो जाएगी। आखिर जब एक बंदा दज्जाल का इनकार करेगा तो दज्जाल उससे कहेगा या कि तुम मुझे खुदा मानने के लिए क्या दलील देखना चाहते हो। तो बंदा कहेगा कि अगर तुम मेरे माँ बाप को जिंदा करके दिखा दो तो आज से 20 साल पहले वफात हो चुके हैं तो मैं तुम्हें खुदा मान लूंगा। इस पर दज्जाल हुक्म देगा तो उसके लश्कर के बहुत से शैतान उस आदमी के माँ बाप के शक्ल में आकर उससे कहने लगेंगे कि ऐ बेटा, ये सामने खड़ा हकीकत में तुम्हारा सच्चा खुदा है, तुम इसे ही अपना खुदा मान लो। और फिर इस तरह वो दज्जाल को खुदा मानकर गुमराह हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इन सभी शैतानी ताकतों के बावजूद भी एक दिन दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से होकर रहेगा और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से इस्लाम का बोलबाला होगा। हर तरफ बरकतें ही बरकतें नाजिल होंगी। और यहूदियों के बारे में हदीस में आता है कि खुद ईसाई मुसलमानों के साथ मिलकर उनका खात्मा करेंगे। वो जिस पेड़ या पत्थर के पीछे छुपेंगे तो पेड़ भी बताएगा कि ये देखो, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा है। फिर गरकत का पेड़ ऐसा होगा जो इस बात की खबर नहीं देगा। इसलिए यहूदियों की तरफ से गरकत पेड़ लगाने की एक मुहिम चला रही है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इजराइल में सबसे ज़्यादा गरकत का पेड़ पाया जाता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक यहूदियों को भी अच्छी तरह पता है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है और आखिर एक दिन हमारा खात्मा होकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तारीख में मासूम लोगों को निशाना बनाकर उन्हें कत्ल क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे उनकी क्या मुकद्दस किताब तलमूद है। यहूदियों के मजहब में 2 किताबें पाई जाती हैं। एक तो वो किताब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत की शक्ल में नाजिल हुई थी, और दूसरी किताब तलमूद जिसके बारे में इनके कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारी तलमूद किताब तौरेत से भी ज़्यादा अफजल है। इस तलमूद किताब में लिखा है कि अगर कोई एक बार तौरेत किताब की तौहीन कर दे तो वो जायज़ है, लेकिन तलमूद किताब की बेअदबी पर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों ये तलमूद किताब इनकी कोई मजहबी किताब नहीं है, बल्कि इनके आलिमों ने ये किताब खुद ही लिखी है और ये कई सदियों के तजुर्बों पर हावी एक किताब है। इस किताब में यहूदियों की शुरुआत से लेकर आज के ज़माने तक होने वाली सभी हालात लिखे हैं कि कब कब यहूदियों पर जुल्म हुआ और कब कब यहूदियों ने दूसरी कौम पर जुल्म ढाया। यहूदियों को सियासत कैसी करनी चाहिए, सारी दुनिया पर यहूदी कौम कैसे राज कर सकती है और जादू टोने के सहारे लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसी तरह इस किताब में नबियों के बारे में भी बहुत सी घटिया बातें लिखी हैं। यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गालियाँ तक दी गई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर गंदा इल्ज़ाम लगाया गया है। और तो और इस किताब में अल्लाह ताला के बारे में भी बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी हैं कि जिनको बयान करते हुए भी डर लगता है। लेकिन आपकी मालूमात की खातिर कुछ बातें आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला रोज़ाना 12 घंटे काम करता है, जिनमें से वो 3 घंटे यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरेत पढ़ा करता है और 6 घंटे सारी दुनिया की मखलूक को रिज़्क देता है और 3 घंटे समुंदर की मछलियों के साथ खेलता है। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा मोहब्बत यहूदी कौम से है और यहूदी कौम अल्लाह ताला के बेटे हैं। इसमें लिखा है कि अल्लाह ताला को भी अपनी एक गलती पर बहुत ज़्यादा रोना आता है। वो गलती है कि अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से यहूदियों के काबा हैकले सुलेमानी को एक बादशाह के ज़रिए गिरा दिया था। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला को भी इस बात का एतराफ़ है कि हैकले सुलेमानी के गिराने का हुक्म ये मेरी गलती थी और अल्लाह ताला अपनी इस गलती पर रोज़ाना कई घंटे
नौज बिल्लाह रोता है और अपने गालों पर तमाचे मारता है, और कभी कभी अल्लाह ताला की आंखों से आंसुओं के कुछ कतरे समुंदर में गिरते हैं तो उनमें भी तूफान आ जाता है। दोस्तों, आप यहूदियों की किताब तलमूद के बारे में रिसर्च करें तो मालूम होगा कि आखिर इस किताब में कितनी ही घटिया बातें लिखी हैं, लेकिन फिर भी यहूदी इसे अपने सबसे मुकद्दस किताब मानते हैं और इसी की बातों पर अमल करके वो मासूम लोगों पर बेहद जुल्म ढाते हैं। यहूदियों की इस किताब को सारी दुनिया से छुपा रखा है, और अगर कोई यहूदी इस किताब को लोगों के सामने पेश कर देता है तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। लेकिन फिर भी यहूदी कौम में भी बहुत से अच्छे सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं जो हमेशा से अपनी इस कौम को समझाते हुए आए हैं लोगों पर जुल्म करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। हमें एक दूसरे का हमदर्द बन के रहना चाहिए। और ऐसे ही कुछ अच्छे यहूदी लोगों ने दुनिया के सामने तलमूद किताब को एक्सपोज किया कि जिससे अब आप भी इसके बहुत से पैराग्राफ गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर आपको अंदाजा होगा कि आखिर ये यहूदी मजहब की सबसे मुकद्दस किताब किन किन साजिशों से भरी हुई है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। दोस्तों, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको ये वाकया कैसा लगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो इससे हमारा हौसला बुलंद होता है, तो आपके सामने हम और वीडियो इस तरीके से लेके आएंगे। तो नाज़रीन, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।